हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जैसे कि हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, मैंने एक टॉपिक पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए हैं और फिर मैंने कहा था कि साथ साथ हम जो हैं पीवाईक्यूज़ वगैरह भी करेंगे। तो वो भी मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रही है, एक मिनट। तो ये पेपर है जून 2012 का। इसके जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। हम धीरे धीरे हर साल के लेंगे और मेरे और भी चैनल्स हैं, जैसे कि ये तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड है। लेकिन एक इग्नू का भी चैनल है मेरा, क्योंकि मैं खुद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर रही हूँ, उससे रिलेटेड भी मैं नोट्स डालती हूँ। एक चैनल मेरा जो पेपर 1 होता है यूजीसी नेट का, उस पे भी है। तो अभी तो फ़िलहाल हम पीवाईक्यूज़ करते हैं। तो पीवाईक्यूज़ अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, तो बताऊँ मैं आप लोगों को, तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे जून 2012 में, वो ये सबसे पहला क्वेश्चन था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 1986 में। तो इसका आंसर है डीपी चट्टोपाध्याय। Second question is the significance of the year 2011 for LIS education in India is sanitary year. Third is digital reference service can be offered through Ask Your Librarian. Biotechnology is formed as a result of fusion. The order of significance of thing, material, and action among various components of a compound subject was expanded by E.J. Coates. Relational database in manipulation command which relate records in different field. Shodh Ganga is a repository of e-thesis. Now, which of the following tests can be employed for hypothesis testing? F-test, chi-square test, and t-test. RRLF falls under the Ministry of Culture. Internet Public Library is being maintained by Drexel University. What are the major driving forces behind an information society? ICT and Internet. Which libraries are functioning as depository library? Delhi Public Library and Connemara Public Library. Which of the following are inclusive geographical sources, encyclopedias and yearbooks? Which principles are corollary to wall picture principle, calf principle and whole organ principle? The factors that influence computer file organization are speed of access, storage space, and file volatility. Major problems of information communication technology are information overload, information insecurity, and lack of control over communication. Which of the following are open source content management system? Drupal, Joomla, and OpenCMS. Which of the following are not styles of citation? Anglo-American cataloging rules and Little Science, Big Science. Which of the following are schools of management thought? Scientific management school, human behavior school, and classical school. अब बात करेंगे हम assertions और reason की. Users can have access to large number of e-general. This is assertion. Users are not aware of using e-generals. तो यहाँ पे both assertion और reason true है, लेकिन reason जो है correct explanation A का नहीं है, assertion का नहीं है. दूसरे की बात करें तो assertion है book selection must be done judicially. Reason is resource sharing is the need of the hour. यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो रीज़न दिया है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है assertion का.
फिर असर्शन है प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। रीज़न इज प्राइमरी सोर्सेज आर हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। फिर असर्शन है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज फैसिलिटेट लिटरेचर रिव्यू। रीज़न इज लिटरेचर रिव्यू समराइजेज मेजर फाइंडिंग्स ऑफ वेरियस स्टडी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फिर असर्शन है नेम अथॉरिटी फाइल शुड बी यूज्ड इन अ लाइब्रेरी। रीज़न इज ऑल वर्क्स ऑफ एन ऑथर शुड बी कोलैटेड। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो रीज़न दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। फिर असर्शन दिया है क्लासिफिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑनलाइन रिट्रीवल। रीज़न दिया है क्लासिफिकेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनुअल सिस्टम। असर्शन गलत है, रीज़न सही है। फिर असर्शन दिया है इफ चेंजेस कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू इट्स फ्रेमवर्क द ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम विल बी इम्बैलेंस्ड। रीज़न दिया है ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ मार्क्ड बाय डायनेमिक करेक्टरिस्टिक। यहाँ पे दोनों असर्शन और रीज़न जो है ट्रू है। फिर असर्शन दिया है देयर इज़ नीड टू कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी। रीज़न इज देयर इज इकोनॉमिक प्रेशर ऑन पब्लिक बजट। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। फिर असर्शन दिया है सिस्टम एनालिसिस आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ वर्क। Reason is system analysis is not necessary if the library is automated. Assertion is true, but reason is false. Now here next questions are based on the arranging of orders. Arrange the following association according to the year of establishment. तो सबसे पहले इसमें आपका ALA है, फिर आपका SLA है, फिर आपका ASLIB है और फिर लास्ट में IALSLIC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले इसमें आपका आएगा कॉपीराइट एक्ट रिवाइज्ड, फिर आएगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फिर आएगा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट और लास्ट में आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। फिर करना है अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले है लाइब्रेरी जनरल, फिर है लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिर है LISA एंड लास्ट में सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, फिर ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन, फिर है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग और उसके बाद है क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम। फिर नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले है आपका स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, फिर लोटका लॉ, फिर जिप्स लॉ और उसके बाद है ब्रैडफोर्ड लॉ। Next is prevention of cholera in India generates following index terms according to modified chain indexing. Arrange them in correct order. तो सबसे पहले है आपका treatment, फिर disease, cholera, medicine and then India. Next question is arrange the following according to their year of first publication. तो सबसे पहले इसमें आपका आता है मैकग्राउ हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, फिर है सबसे पहले आपका है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, फिर है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, फिर उसके बाद है मैकग्राउ हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लास्ट में है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो सबसे पहले आपका आता है DESIDOC, फिर है NASDOC, फिर है NIC और लास्ट में है NISCAIR। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट। तो सबसे पहले आपका आता है गुजरात PL एक्ट, फिर उड़ीसा PL एक्ट, फिर उत्तर प्रदेश PL एक्ट और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश PL एक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए हैं वो है मैच द फॉलोइंग।
तो ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट के साथ सेकंड लॉ आता है। शेल्फ अरेंजमेंट ऑफ कैटलॉग आपका फोर्थ लॉ में आता है। ओपन एक्सेस एंड शेल्फ मैनेजमेंट आपका थर्ड लॉ में आता है। एंड लाइब्रेरी लोकेशन एंड आवर्स आपका फर्स्ट लॉ में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन रिकॉर्डर, ये है ऑबिचुरी ऑफ देवानंद। यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल, ये लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ जर्नल्स। बुक्स इन प्रिंट, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स। सोशल साइंस इंडेक्स, दैट इज आर्टिकल्स ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूजर ओरिएंटेशन विच इज रिलेटेड टू रेफरेंस सर्विस। इंफॉर्मेशन रीपैकिंग रिलेटेड टू डाइजेस्ट सीरीज। Translation related to support science. Indexing related to bibliographic service. Next is textual representation which is related to ASCII. Computer language is Pascal. Network tool is Gopher. And searching technique is Boolean operator. Next question is law of parsimony, that is related to overall economy. Principle of osmosis related to reclassification. Paperless society, which was given by F.W. Langston, and APUPA pattern, which is related to classification. Next question is hubs. It is a physical layer device that connects multiple computers, each via a dedicated cable. Repeater is a physical layer device used to interconnect the media segments of an extended network. Bus topology is a straight line data highway that carries network information from one network station to another. And switches are multiple bridges known for transfer of data between different parts. Then RRLF is found in Kolkata, Connemar Public Library is in Chennai, NISCAIR is in Delhi, and Khuda Baksh Oriented Public Library is in Patna. Next question is Right Man at Right, which is related to deployment. Right Man at Right Library. Budget is related to annual financial statement. Journal is related to ISSN, and identifying users is related to TQM. Now the last 5 questions, that is 46 to 45, it is based on the passage. तो आपको इस passage को पढ़ना है और फिर इससे related आपसे question पूछे गए हैं, उनका आपको आंसर देना है। तो मैं पैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ। आप लोग पढ़ लीजिएगा इस पैसेज को, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूँगी। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं, व्हाई डिजिटल ऑब्जेक्ट्स बिकम इनएक्सेसिबल क्विकली। मैं पहले यही कहूँगी कि आप लोग इसको पढ़िएगा, इन क्वेश्चंस को लिखिएगा, पहले खुद से आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसको इसके साथ चेक करिएगा कि ये इससे मैच होते हैं कि नहीं होते। तो सबसे पहला आंसर है बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद है रीइंटरप्रिटेशन इज अ डिजिटल प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी वेयर क्यूरेटर इंटेंड्स टू रिक्रिएट अ वर्क। फिर है व्हाट इज द फोकस ऑफ सिस्टम इम्यूलेशन, डेवलपिंग सिस्टम दैट मिमिक हार्डवेयर। Which of the following is true about migration preservation strategy? Migration is related to the viewing problem. And the last question is refreshing preservation strategy focuses on upgradation of storage mechanism. तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने पुराने क्वेश्चंस करवा रही है, ये आएंगे भी कि नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे क्या आएंगे, बट हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन करके चलनी चाहिए। एक तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रही हूँ, मतलब नोट्स बना के दे रही हूँ। आगे हम चीज़ों को समझेंगे भी, हम मतलब क्विज़ भी रखेंगे, हम मतलब ऑनलाइन जब मैं लाइव आऊँगी कभी तो हम ऑनलाइन लाइव क्विज़ रख के सॉल्व भी करेंगे, जिसको मेंटी क्विज़ भी कहते हैं।
तो वो सब चीज़ें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को मुझसे जुड़ना ज़रूरी है। अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो इसमें और भी चेंजेस आएंगे, और भी काफ़ी सारे मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। देखा जाए, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं अपनी भी तैयारी कर रही हूँ और आपकी भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि देखो सारे बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते हैं। हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, और भी प्रॉब्लम्स होती है, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो नहीं कर सकते हैं वो मिल के पढ़ाई करें, तो शायद हम कामयाब हो जाएं मिल करके। और साथ तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला है, तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।